Hola, amigos. How you people doing? Meet this guy. He's my father. His name is Ramanuj Prasad. And in this episode, I'm gonna tell you how Casanova became Casanova. You know why I transformed my own personality to adapt to the different situations. He played a major role there where he trained me like an assassin. He gave me a lot of beating, dude, and you won't understand. मतलब मेरा बचपन अगर आप देखोगे तो I shivered in pain. If you understand the meaning of that sentence, probably you will understand what I mean. He made me shiver in pain and get used to it. Probably that is how he thought he would train his kids, make them tougher, make them unbreakable, no matter what, you die, but don't give up. It's like that. That attitude, it comes only when you have a little cruel father like him. And, but I appreciate, for the fact that he made me a very, independent individual where I'm no longer dependent on anybody for anything that matter. I am a good cook. I have lived post 25, 26. I have been living all alone. Even after marriage, I have a kid, uh, 1.5-year-old baby girl, which you might have all already seen through my shorts and various other platforms. But mostly I have lived my life alone. I prefer loneliness rather than keeping things complicated. It's better that every human should evolve independently first, and then probably you should look for a partner. Sexual life does play a very important role, but when it matters the most, that's when you should invest your energies doing that. Let's come back to the topic. No more extra gyan here because you people are crazy people, which I call them Gen Z. Gen Z ऐसी चीज है भाई जो ना चाहते हुए भी बहुत इवॉल्व हो रही है। क्यों इवॉल्व हो रही है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि मैं आपसे जस्ट पहले आया। अगर आपको मैंने बोला कि मैं जेन जी का बाप हूँ तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। एक्चुअल में बाप हूँ। मैं आया हूँ 90s में, तो मैंने 90 से भी थोड़ा सा पहले और उसके बाद दोनों का एरा देखा, जिसमें मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। आज जब मैं ट्रैवल करता हूँ अलग अलग जगहों पे, तो मुझे महसूस होता है कि जो चीज़ें पहले होती थी वो अब क्यों नहीं हो रही हैं। रीज़न क्या है? और लोग बेवजह की कंप्लेनें कर रहे हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, हमें एसिडिटी रहती है, हमें खाना नहीं पचता, हमें बीमारी हो गई है, हमें बीपी है, शुगर है, ब्ला ब्ला। भाई, होगा ना। आप क्या खा रहे हो, क्या आपको पता है? जो मार्केट में आपको दिख रहा है, क्या आपको लगता है ओरिजिनल है? मैंने लौकी को सुबह से शाम में कम से कम एक हाथ का होते हुए देखा है। और अगर ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तो सच मान लीजिए कि हाँ, हुआ होगा। और ये कैसे किया जाता है, ये लिटरली साइंस जो है ना, ये रूल कर रहा है सोसाइटी को। और आप उसके कर्जदार बने जा रहे हैं। उससे आप रिश्ता बढ़ाए जा रहे हैं। भगवान से आपका रिश्ता कम होते जा रहा है। तो साइंस क्या खुद ही आ गया था क्या, या उसको भी किसी ने लाया था, या उसका निर्माण भी किसी ने किया था? इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, but it needs to be discussed. This is how Casanova evolved, actually. This is my story. So stay tuned. There are many secrets to be revealed. I couldn't express my entire psychology when I was teaching these young minds because I was hesitant. If they will listen to my story, they'll quit rest of the things which is being taught.
in a school. They'll try to idolize me, rather than idolizing somebody else. No, it's not that easy. My life has been full of troubles. There have been love stories, but there were pains also sometimes. So, in order to become me, think many a times, dude, it's not that easy. Don't chase my dreams. You chase your own dreams. You build your own legacy. I'm. I just want to be your guide. Where I can motivate you and support you in some way possible. Where you feel you are out of energy, you are not able to concentrate. Like generally, जब एग्जाम्स आते हैं, बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। अगर आप सही में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, नो मैटर यू आर अ एवरेज स्टूडेंट और अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, या जैसे भी हो आप, अगर आपको सही में स्कोर करना है, आपका एक टारगेट सेट करें कि आपको इतने ही कैटेगरी में, आप मान लें कि हाँ भाई आप टॉपर नहीं है, पर हम टॉपर को चेज कर रहे हैं। We are in a race where there is one topper and we are chasing him. In order to become better, what you need to do, it's not that कि वो 3 महीना आपने पढ़ लिया और उसको बीट कर देंगे। नहीं भाई, वो चैम्प है, वो पैदा हुआ है किताबें, कीड़ा बोलते हैं उसको। मेरी मेरी जुबान में बोलोगे, क्योंकि मैं 90% स्कोर करने वाला स्टूडेंट नहीं था अपने चाइल्डहुड में। मैं आई वाज समबडी हु वुड बी हैप्पी प्लेइंग ऑल स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ऑल मीन्स ऑल। 52 कलाएं अभी मैंने दिखाई नहीं है ना, पर शायद 4 5 6 कुछ दिखा दिए। तो 52 कलाओं में कुछ 30 ऐसे गेम्स हैं जिसमें आप मुझे इजीली नहीं हरा पाओगे, या आई कैन से कि ऑन अ गिवन डे, हर कुत्ते का दिन होता है ना, पर जिस दिन मेरा दिन होता है तो उस दिन मैं बहुत दहाड़ता हूँ। पहली 3 बॉल पे हैट्रिक मैंने भी ली है, 6 छक्के मैंने अपनी लाइफ में बोल के भी मारे हैं। तो आई देयर वाज अ फेज व्हेन आई फियर्ड नोबडी मैन, देयर वाज रॉ पेस इन मी। आई कुड बोल 145 क्लिक्स। जस्ट अंडर 14 में मुझे बच्चे खिलाते नहीं थे, मुझे बाप मानते थे। तुम्हें कौन खिलाएगा भाई, तुम अंपायरिंग कर लो, 50 50 रुपए दोनों तरफ से हम लोग टिप दे देंगे, आपकी जर्नी अच्छी रहेगी। ये कैसनोवा की जो जर्नी है ना, बहुत कमाल की रही है। यहाँ मुझे सीखने की बहुत लालसा थी। मुझे मुझे हर कुछ बनना था। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो ये बुरा नहीं होगा और गलत भी नहीं होगा, और मैं बना भी बहुत कुछ। बहुत तरह के जॉब किए हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में, टीचिंग ही नहीं की है। आई सोल्ड ऑटोमोबाइल्स इन पटना। महिंद्रा का एक शोरूम था, उसमें ऐसे ही चला गया था। मुझे पैसे कमाने का लत लग गया था, मेरी आदत थोड़ी बिगड़ गई थी, तो समझ रहे हो। तो और उस टाइम में जैसे एक मैच्योरिटी नहीं आई होती है, तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, यूथफुल होता है, उसके अंदर हॉर्मोन्स जागरूक होते हैं और वो करता है भाई। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो अपनी सारी मौज मस्ती बाहर की दुनिया में ढूंढता है। हालांकि जब वो आपको समझ होगी कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है, कचरा भरा हुआ है, मेरा बस चले तो मैं उस दुनिया में कदम ही ना रखूं। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसलिए प्रेस करता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग है। अगर आप रीच करना चाहते हो ऑडियंस को, आवाम को जल्दी कुछ मैसेज देना चाहते हो, आप दे सकते हो, ये पॉसिबल है। बट एक्चुअल में इसके नुकसान ज़्यादा देखे हैं मैंने, और ये अपने आप को भगवान से ही बड़ा बताने लगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ये जो कुछ भी साइंस ने बनाया ना, वो चंद सेकंड्स में एक्चुअली एशेज में कन्वर्ट हो सकता है, ये मान लेना। नहीं मानते हो, सोच रहे हो कि अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, ये होगा वो होगा। देर इज वेरी लिटिल टाइम। दिस इज a very huge prediction I'm making on my channel, and I don't talk shit just for publicity or becoming popular. No, I read, एस्ट्रोलॉजर हूँ भाई, पढ़ता हूँ। ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ ना, तो मैंने उसका भी नॉलेज लेना शुरू कर दिया था कम उम्र से। बताता नहीं था जल्दी, बट मैं अपने आप को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे प्रेडिक्शंस करता था और फिर जस्टिफाई करता था कि वो सही भी हुए
या कोई मेरे माइंड के साथ ऐसी वहम खेल रहा था, भ्रम पैदा कर रहा था। नहीं, वो साबित होते थे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप बहुत सारे लोगों से इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिनको मैंने लाइव अनुभव कराया, और वो फिर अलग ही लेवल के थे, अलग ही लेवल में पहुंच गए थे, ऐसा बोलूं तो सही होगा। मतलब ऐसे कराना नहीं चाहिए। मेरी मुझे नुकसान कर, हुआ उसके बाद। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो आपको भगवान महसूस कराता है, वो आप किसी को ना बताएं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो आप, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप मान लीजिए कि वो आपका नुकसान भी करा सकता है। आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है ना, उसको जल्दी रिवील ना करें। भले ही आपका माँ बाप को क्यों नहीं आप ज़्यादा चीज़ें बताते हैं, फिर भी वो चीज़ ऐसी है जो आपके माँ बाप से भी अटूट है। वो आपके माँ बाप से नहीं मिली है, वो भगवान से मिला हुआ है ना। तो आपके माँ बाप को भी उसके बारे में जानकारी हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ सीक्रेट्स हम रिवील कर सकते हैं। माँ से आप काफ़ी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। पिता के साथ फिर भी आप बहुत अलग व्यवहार रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उनको समझें, उनका आदर करें, इसमें कोई तो मत नहीं है मेरी। तो वापिस मुड़ते हैं कैसनोवा की स्टोरी पे। मेरे सेशंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, पर यही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब ज्ञान देता हूँ, बट मैं अपने इमोशंस में खो के देता हूँ। मैं रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं बनाता। ना मैं जब पढ़ाता था तब बनाता था। मैं देखता हूँ कि टीचर्स प्रिपेयर करते हैं फॉर सर्टेन ओकेजन्स। देयर इज अ रिपब्लिक डे कमिंग, सो दे वुड write a script, what words to be used, how to be used. ah I don't give a fuck about all that, man. Don't mind my language. I'm like that only. When I'm on stage, I rule the stage. This is what Casanova is. He doesn't need anybody to get inspiration, He is himself is an inspiration. And I see my old pics, I go crazy. यार ये कब बनूंगा मैं, कब ये स्टार्ट करूँ? मेरे दिल में अभी बहुत दिनों से चल रहा था। हालांकि टीचिंग में मुझे उतना समय नहीं मिल पाता था। हमारे एक मित्र थे पिछले इंस्टीट्यूशन में, मिस्टर तूफान रॉथ, मैथ्स के टीचर थे। 6-7 महीने हमने साथ में बिताया, और काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। काफ़ी चीज़ें सिखाई, उन्होंने भी सीखी मुझसे। और उनको जोश चढ़ा था कि चलो सर ट्रांसफॉर्म करते हैं। उन्होंने मुझसे काफ़ी चीज़ें जान ली, तो फिर उनको मोटिवेशन मिला और किया उन्होंने स्टार्ट। मैंने स्टार्ट किया, बट फिर वो धीरे धीरे इग्नोर, नेग्लेक्ट करते रहे, स्किप करते रहे। फिर ऐसा हुआ कि मैं भी हट गया उससे। मतलब आप 8 घंटे जॉब करके आते हैं ना, तो आपका माइंड ऑलरेडी थक चुका होता है। उसकी फ्यूलिंग जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है। और उसके बाद अगर आप खा भी लें तो तुरंत खाने के बाद एक्सरसाइज करना बेवकूफ़ी होती है। ये भी एक ज्ञान है, ले लेना आप। जो सोचते हैं या ज़्यादा खा लेना एक ही बार, वो भी बेवकूफ़ी है। हाँ, मैं अपने आप को डाइटिशियन नहीं बताता हूँ, बट मैंने जो कुछ अचीव किया अपने दम पे अचीव किया। बॉडी बिल्डिंग की उस टाइम में भी मैं ट्रेनर नहीं फॉलो करता था। मैं खुद ही स्टडी करता था। ये जो डिवाइस मिली है आपको, ये जो एक्स्ट्रा लग्जरी मिली है, जहाँ आप अपने हाथों में दुनिया रखते हैं, तो उसका उपयोग करें। समझें कि माइंड बॉडी कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। एंड what are those ways, where you can enhance your capabilities? No, there are many methods to improve certain things, जो बेसिक है और वो आपको आनी भी चाहिए। तो कैसनोवा की स्टोरी ये है, जो गूगल, एक्चुअली ये बनाने का जो ख्वाब है मेरे दिल में, ये जो आज एपिसोड बन रहा है, ये एक्चुअली मैं बनाना नहीं चाहता था। जो चीज़ छुपा हुआ है उसको छुपे रहने दो ना। बट अब कोई मुझसे पूछ दिया, और भी मेरा अपना पूछा है, तो उसको तो बताना पड़ेगा ना कि भाई एक्चुअल में कैसे हुआ कौन। तो मैं, नो हार्ड फीलिंग्स डूड, ही इज माय कजन हु इज अ शार्प माइंड, ही इज
too good. And you should take motivation from him actually. He's an IITian from Kharagpur. So he holds some rank, I don't remember exactly. His father, my uncle, was an NSG commando. He passed away. He's sad. I missed him. And he makes me cry, you know. I don't want to remember what I go through when I remember him. So this guy, he became uh, IITian, and he's currently working for Tata Steel, and his name is Avinash. And bro, Casanova is not actually a womanizer. What Google says that, you know, there was an Italian, and he was a womanizer charmed by many women. Yeah, I accept that he was a womanizer. He had relationships with many, but why those women were attracted towards him? What made that attraction happen? You know, that happens only when you have the charisma, you have the flair, you have, you know, that attraction in you. It doesn't come from your facial structure, body, physic. No, if that is so, every good-looking man would have many girlfriends. Na? Common thinking, but does that happen? No, absolutely not. It comes from your inner self, how good you are on what platform, how quickly you adapt to the situations, how well behaved you are, how nicely you dress up. फर्स्ट स्टेप, फैशन का सेंस होना चाहिए आपको। आपकी बॉडी पे सूट नहीं करता, आप कुछ भी पहन के निकल चलते हो, वो फैशन नहीं होता है। व्हाट सूट्स योर बॉडी, दैट बिकम्स अ ब्रांड। आंख डाउन, इट्स अ वन लाइनर, यूज कर लेना कहीं पे। कैसनोवा के पास बहुत वन लाइनर्स होते हैं, और मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता यार। तुम लोग कॉपी पेस्ट वाले दुनिया में हो गए हो, जहाँ टेक्नोलॉजी ने तुम्हें, यू नो, लेजी बना दिया है। अपनी थिंकिंग लाओ ना, अपनी क्रिएटिविटी लाओ, आउट ऑफ द वर्ल्ड चले जाओ। कौन बैरियर्स बना रहा है, उसको बोलो भाई साइड हट जा। रोड ब्लॉक्स बनाएगा ना तो तू ऊपर जाएगा। रोड ब्लॉक्स बनाने का टाइम नहीं, अभी अपना लेगेसी का ब्लॉक बनाने का टाइम आ गया है। कि मैं जब जाऊं ना, तो दूसरा कैसनोवा रेडी रहे सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए। कैसनोवा एक इंसान था जो हर चीज में महारत रखता होगा। अगर भगवान की हम कलाएं बात करते हैं ना भाई, इज्जत करते हैं ना भगवान की, कि उसके पास, कृष्ण के पास, वासुदेव के पास 16 कलाएं थी, फिर वो घटी, 12 कलाओं में राम बनकर आए। हाँ? ऐसे हम भगवान को जानते हैं, तो इंसान को कैसे जाना जाएगा? ऐसे ही जाना जाएगा ना। पावन स्किल्स लेके आया हूँ। अब ये कलाएं हैं या क्या हैं, मैं कौन हूँ, इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैं उससे बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसनोवा की स्टोरी यही है कि कैसनोवा बनने के लिए मुझे बहुत बुली किया गया था। जब मैं बहुत छोटा था ना, आपकी तरह स्कूल में पढ़ता था, तो मैं बहुत बुली हुआ हूँ। बहुत बार मुझे लोगों ने रुलाया है, पीटा है। हाँ, और इसे बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती कि उसने मुझे आज जो बना दिया है, आज कोई मुझे इजीली हाथ नहीं लगा सकता है। मे बी if I'm in not good mood, if I'm in good mood, I will take that beating. But if I'm not in a good mood, stay away from me because I'm brutal at times. You know, it those instances have made me tougher. Where as an individual, I'm no longer dependent on anybody. तो मुझे टफ बनना पड़ा, मुझे सिचुएशंस ने बनाया कि भाई हर जगह तेरा बाप नहीं चलेगा तेरे लिए एक जंग लड़ने के लिए। कब तक तेरा बाप खड़ा रहेगा? तो तुझे ही खड़ा होना पड़ेगा। मैंने सीखा, हर चीज़ सीखी। हाँ, मैंने पैसे पे फोकस नहीं किया। मैंने कमाया पैसा, नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, पर मैं कभी पैसे के पीछे भागा नहीं। मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, वो मेरा गोल कभी नहीं रहा। हाँ, मैं काम ऐसा करूँ जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो और मैं उसी में खुश रहता हूँ।
रॉयल्टी एक्चुअल में देखा जाए तो मेरे हिसाब से ना ये सोने चांदी गहने जेवर और गाड़ी घोड़े में नहीं है। उससे आप आप बाहरी दुनिया में कदम रख रहे हैं, और उस बाहरी दुनिया में कदम रखने का मतलब होता है कि आप माया जाल में फंस रहे हो। ये कैसनोवा का रिवील है सीक्रेट, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। बाहर की दुनिया जो है ना, जो आपको लगती है कि आपके माँ बाप जाने से रोकते हैं, वो इसलिए नहीं रोकते हैं। ये दुनिया एक्चुअली आपको बुरा बनाने की कोशिश में लग जाती है। हालांकि आप अच्छे घर में पलते हैं, बड़े होते हैं, आपके माँ बाप के सिद्धांत आपको और नेक रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, बट आपको लगता है कि यार ये कि जबरदस्ती हमारा रास्ता रोक रहे हैं। नहीं, वो रास्ता नहीं रोकते हैं आपका, वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी प्रोसेस जर्नी का एक हिस्सा है। तो उनकी इज्जत करें और इस माया जाल में ना फंसे। कैसनोवा की जिंदगियां मेरी जिंदगी से शायद हटके थी। जो एक्चुअल कैसनोवा था, जो इटालियन जिसकी बात लिखी हुई है, उससे एक ही चीज मैच होती है। ही वॉज ऑल्सो चार्म्ड बाई मेनी वुमेन, आई वॉज ऑल्सो हैड मेनी रिलेशनशिप्स इन माई so lengthy singlehood career. If I say singlehood career, I mean I got married at the age of 33. But I was, yeah, I got female attraction, or even now also I get very much female attention quickly. I have that aura. My presence is felt by people around me. No matter it's a boy or a girl, doesn't make any sense. But I like that. I'm like that only. People should adore me. People should like me. How he dresses. He has his own sense of fashion. He walks in a certain way. He talks in a particular way. That is what I am. I'm not trying to copy anybody. Yeah, like everybody, I too have certain fantasies. I too, adore certain sportsmen. I too idolize people, and that made me transform my own physical and mental capability. And that's how Casanova became who Casanova is. Few more secrets to be revealed soon. Tomorrow I'm going to my own hometown, my village, where I'm gonna sell some mangoes, earn some money, and cultivate sugarcane. There are some stuff which needs to be done, and I'm there to work along with my father. After 35 years, it's time for reunion. Take good care. Bye bye. And if you like it, भाई थोड़ा सब्सक्राइब करो, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो। Let Casanova reach the minimum target. If I have to give time to you people, I should also be making money. For me, time is money, and I don't like giving it for free. I don't want to take it from you. I want to take it from you too. So make me feel good about it. I don't want this to be the only source of income. No, that is not the case. I have started this channel to probably pass on my knowledge, which I have earned in these 35 years. I want the next generation to understand the importance of each of these skills. ना कृष्णा ने कभी क्रिकेट खेला था, ना गणेशा फुटबॉल खेलते थे। तो भाई ये सारे जो स्पोर्ट्स हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर तो जाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर ये क्रिकेट फुटबॉल आएगा कहाँ से। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब मैंने ढूंढा है, और उसका जवाब यही है कि भाई तूने जो कुछ एक्वायर किया है ना, just pass it on to the next generation. Let them decide whether they want to carry this legacy in the future or not. This is my job. I'm doing my job probably the best way possible, trying to improve. Yeah, there'll be phases when I'll be tough. My language might cross the barrier, but don't give a damn about it. This is what Gen Z is. Now listen to your father. When your father is saying something, no matter it is cruel, take it, keep it, and swallow it. Jai Hind.